केमिकल्स तो डेफिनेटली चाहिए आपको। तो यूजुअली ना, एंड ये तीनों बहुत हेवी होते हैं, लाइक लाइमस्टोन एंड कोल, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन ट्रांसपोर्ट एज रॉ मटेरियल वेरी इजीली। सो ये यूजुअली जहाँ पर वो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उस रीजन में आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन भी मिल जाता है। ओके, so the first cement plant was set up in Chennai in 1904, and since largest reserves of limestone Madhya Pradesh में है, तो maximum development of industry has also been around the state itself. Okay, so major producers of cement in India are Madhya Pradesh, Satna, Katni, Mehar, Jabalpur, Ratlam, Neemuch maybe, Banmore and Akaltara. Okay, so इसके around छत्तीसगढ़ में it is Damul, Durg and Mandhar. Andhra Pradesh में, I'm sorry if I'm mispronouncing these names. If you know what the correct pronunciation is, let me know. Okay, I'll happily pronounce it. I'll happily make the correction. Vijayawada, Krishna, Guntur, Kurnool and Visakhapatnam. Rajasthan में सवाई माधोपुर, उदयपुर, लखेरी, चूरू, चित्तौड़गढ़. गुजरात में पोरबंदर, जामनगर and द्वारका. And Tamil Nadu में Tulukapatti, Theliyuthu, Dalmiapuram and Tirunelveli. Okay, so these are the places where you will find सीमेंट। अभी आई डोंट थिंक आपको सीमेंट के लिए एक सिंगल जगह पूछी जाएगी, बट इट इज बेटर टू रिमेंबर कि मध्य प्रदेश इज द प्लेस जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सीमेंट मिलता है। ओके, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज इजी। You will have to, India is the second largest producer of nitrogenous fertilizers after China. Makes sense because अपने यहाँ पे agriculture is an important sector. Okay, बहुत important sector होता है। तो फर्स्ट स्टेट ओन फर्टिलाइजर यूनिट हमने सिंधरी बिहार में शुरू कर दिया था, फॉलोड बाय नांगल इन पंजाब। ओके, नाउ एफसीआई फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका फर्स्ट यूनिट वो सिंधरी में, देन नांगल, देन गोरखपुर, तालचेर, रामागुंडम में है। नेशनल फर्टिलाइजर इन भटिंडा, नांगल, पानीपत, विजयपुर। Hindustan Fertilizer Corporation in Baroni, Durgapur, Namrup, and then Rashtriya Chemicals and Fertilizers of Trombay. Fertilizer and Chemicals Travancore in Kochi, Udyog Mandalam. Udyog Mandalam is like a separate place, different from Ooty. I know you feel that Udag Mandalam is Ooty and that is the same, but I have checked this. Udyog Mandalam is a different place than Udag Mandalam. Okay, so Udag Mandalam is Ooty, but Udyog Mandalam is a separate place. Okay, Madras Fertilizers it's limited, and then there's the Paradweep Phosphate Limited. Okay, so ये सारे अलग-अलग places है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। I am reading this out for your benefit because I feel उससे आप एक बार पढ़ तो लेंगे कम से कम। People आपको ये याद करना पड़ेगा. You'll have to read this once. I'm repeating myself multiple times, but that's exactly what this is. आपको कम से कम इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, मैप्स के साथ देख लीजिएगा. So that's a good way. It's a visual aid ना, अच्छे तरह से याद रहेगा आपको. Okay, केमिकल इंडस्ट्री का है ना, केमिकल इंडस्ट्री इज इंटरेस्टिंग. वो खुद ही अपना लार्जेस्ट कंज्यूमर है, लाइक बेसिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसी को वापस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए वगैरह, लेकिन ना उसको वापस यूज करते हैं इन द केमिकल इंडस्ट्री इटसेल्फ. ओके, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स ग्लोबली, एंड एशिया में इट्स द 3rd लार्जेस्ट. ओके, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट. तो कौन सी केमिकल्स यूजुअली? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स, राइट? क्या बुलाते हैं उसको? किंग ऑफ एसिड्स, राइट? सोडा ऐश, कॉस्टिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. ओके, ये सब कुछ होता है. सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट्स कहाँ लोकेटेड है? खेतरी, अलवाइन, केरला, मुंबई, कोलकाता, बर्नपुर, जमशेदपुर. सोडा ऐश के प्लांट्स इन मिठापुर, धरंगधरा एंड पोरबंदर, ऑल इन गुजरात. ओके, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक बड़ा सा factory है at Rasaini in Maharashtra, which produces the chemicals required for drugs, dyestuffs and synthetic rubber. मैंने आपको रासायनी का एग्जांपल दिया था, right? If you are going to travel anywhere from Pune to Mumbai या Mumbai to Pune, so you come across this. Okay, one second. Okay, you come across this particular place. It just smells very weird, so you should be able to spot it from miles away when you are crossing that place. But that's where Rasaini is. Okay. Okay, there's the Hindustan Hindustan Insecticides Limited. उसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स उद्योग मंडलम में है, रासायनी एंड भटिंडा में है. ओके, एंड आईपीसीएल अपने ऑपरेशंस यूजुअली वडोदरा, दहेज एंड नागोठनी में होते हैं, बिकॉज उनका भी पेट्रोकेमिकल इज आल्सो केमिकल्स, राइट? एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अ ह्यूज प्रेजेंस इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो हमको जामनगर के प्लांट से पता है. बहुत बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है.
Okay. Now you move on to the petroleum refineries in India, which is extremely important. Okay. जामनगर से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा रिफाइनरी. ओके, सो जामनगर इज इजी टू स्पॉट, गुजरात में. नयारा एनर्जी वंस अगेन गांधीनगर, गुजरात में. ओके, सो दिस इज इट. मैं मार्क कर देती हूँ. सी, दिस इज द जामनगर थिंग, दिस इज द गांधीनगर थिंग. ओके. कोची केरला. ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ कोची केरला. वहां पे भी एक बड़ा सा रिफाइनरी है. वहां पे मार्क करके रखा है कौन सा भारत पेट्रोलियम का है, कौन सा किसका है. ऐसे आई होप यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम द मैप. उसका लोगो तो काफी फेमस है, मतलब लोगो से तो आपको पता चल ही जाना चाहिए. इट्स प्रीटी, इट लुक्स प्रीटी फेमस लाइक दैट. ओके. सॉरी, there's one in Mangalore, Karnataka mein, Mangalore Refinery and Chemicals. You can make this out. Paradeep Odisha. Okay, can you see Paradeep Odisha? And then you have Panipat in Haryana. Haryana Panipat. This is one more. Gujarat में गुजरात वडोदरा में एक और है अपना. So we'll have वडोदरा वाला कहाँ गया यार? Okay. Anyways, मुंबई वाला तो है, मुंबई का पता है हमको. गुरु गोबिंद सिंह इन भटिंडा, गुरु गोबिंद सिंह इन भटिंडा, ये वाला. एंड देन यू हैव मनाली इन चेन्नई. ओके, मनाली नॉट इन हिमाचल प्रदेश, मनाली इन चेन्नई. ओके, ये वाला. सो दीज रिफाइनरीज आर वेरी फेमस. ओके, तो आपको मिनिमम बेसिस पे ये पता होनी चाहिए कि कौन से रिफाइनरीज कहाँ है. ऑफ कोर्स यू विल हैव द वन इन बोंगईगांव एंड गुवाहाटी एंड दिग्बोई एंड द वन इन बरौनी. हल्दिया का ये बहुत अनदर फेमस है. मथुरा इन मथुरा का रिफाइनरी फेमस है. सो ये सारे रिफाइनरीज यू शुड नो वेयर दे लाई. ओके, विशाखापट्टनम इन आंध्रा, मथुरा इन उत्तर प्रदेश, हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, बीना करके एक रिफाइनरी है इन मध्य प्रदेश. ये बीना, मनाली, weird names है, right? Weird names as in you have not, this is not something you immediately identify with the state. तो उनको प्लीज याद कीजिएगा. बीना इन मध्य प्रदेश एंड बरौनी इन बिहार, नुमालीगढ़ इन असम, बोंगाईगांव इन असम. यार असम के सारे ये पूछा करते हैं आपको कि कौन सा असम में लाई करता है. नुमालीगढ़, बोंगाईगांव, गुवाहाटी and Digboi. Okay, so these happen to fall in Assam. Nagapattinam is in Tamil Nadu and Tatipaka in Andhra Pradesh. Tatipaka I think आपको last time पूछा भी था. I think पूछा था आपको last paper में कभी तो, या last के 2 papers में से कभी तो. Like this is very recent. Tatipaka in Andhra Pradesh. Okay, fine, good. अभी IOCL, BPCL and HPCL को फटाक से देख लेते हैं. It's easy. IOCL, BPCL and HPCL. What are they? These are companies, government like public sector companies in the oil and gas sector. Okay, fine. IOCL New Delhi में है. And BPCL and HPCL are both headquartered in Mumbai. Okay, IOCL is Indian Oil Corporation. All right. अब ये 1959 में सेटअप किया था, थोड़ा सा लेट था. Okay, like first one was BPCL actually. One of the largest commercial, इसका महारत्न status है. And 11 refineries operate करता है. CPCL and Lanka IOC PLC, Indian Gas है ना वो वाला. And you have that BPCL जो है, that was the that was the first huge company जो हमने establish किया था. उसके refineries बीना, मुंबई, कोची and नुमालीगढ़ में located है. इसको भी महारत्न status है. Okay, HPCL once again same 1974 में है. उसका parent company ONGC है, महारत्न है status उसका. Refineries मुंबई, विशाखापट्टनम, मैंगलोर में है. Okay, just remember where the refineries are. You will never be asked कि किसका refinery है, BPCL का, IOCL का, HPCL का, ये नहीं पूछा जाएगा. लेकिन रिफाइनरीज कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए. ओके, यू शुड बी एबल टू गेस वेयर द रिफाइनरीज आर. यार पीपल, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना एंड मिनी रत्ना 2 स्टेटस जो होते हैं वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे. लाइक हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन, व्हाट इज द एवरेज एनुअल नेटवर्थ, या फिर प्रॉफिट कितना किया है आपने ओवर द लास्ट 3 years और 10 years और व्हाटएवर. ओके, 3 years के बेसिस पे दिया जाता है. ओके, तो यू हैव टू जस्ट वर्क इट आउट लाइक दैट कि कितना, एंड देन उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करना चाहेगा, या सो ऑन सो फोर्थ. इट आल्सो लाइक महारत्ना कंपनीज जो होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम होता है खुद के डिसीजन लेने का. ओके, उनको हर चीज वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं करनी पड़ती है. सिंस दे हैव मैनेज्ड द कंपनीज वेल, दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम. ओके, नवरत्न, मिनी रत्ना एंड मिनी रत्ना 2 को थोड़ा कम फ्रीडम है एज अपोज टू दैट. ओके, ठीक है, चलिए.
ये नवरत्नास एंड 14 नवरत्नास एंड 10 महारत्नास, इसका लिस्ट आपको पक्का पता होना चाहिए। ये जो 10 महारत्नास है दैट इज एनटीपीसी, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीपल चलो एक काम कर लेते हैं, ओके जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स बनाता है वो तो डेफिनेटली इसका पार्ट होगा। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस। ओके, तो ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस। ओके, 5 ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हो गए, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड गेल। ओके, ये तीनों आ गए। These should obviously be something जो बहुत पैसा कमाता है अपने यहाँ पे। पेट्रोलियम के जितना पैसा और कुछ नहीं बनाता। ओके, so we are good over here. All right, now let's look at those companies जो कोल से रिलेटेड है। ओके, so कोल इंडिया लिमिटेड, of course yes, and then उससे related of course we have, okay, coal india limited will also make a lot of money because coal is also a very important commodity, raw material करके बहुत important होता है। and sale, यार सेल पैसा नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? दिस इज द वेरी बेसिक इंडस्ट्री, तो ये पैसा बनाते हैं। फिर बचा कौन? भेल, भेल डेफिनेटली बनाएगा क्योंकि वो इट इज हेवी इलेक्ट्रिकल्स, लाइक सबसे बड़े बड़े हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड बड़े बड़े ये जो होते हैं लाइक लोकोमोटिव्स एंड ऑल, ये तो भेल बनाता है, राइट। एंड देन ऑल्सो यू हैव द पावर ग्रिड। ओके, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक होगा। ओके, इजी टू रिमेम्बर द 10 महारत्नास, आसान है ना। ऑयल से रिलेटेड 5, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड 2 है, एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एक कोल इंडिया है, एक ऑब्वियसली एक जो स्टील बनाएंगे, दूसरा जो हेवी इलेक्ट्रिकल्स बनाएंगे एंड दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप रहता है सबको, सो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दीज 10 महारत्नास मेक सेंस। ओके, 14 नवरत्नास जो है उसमें यू हैव दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कॉनकॉर, इंजीनियर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हैल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, या फिर एमटीएनएल, नाल्को, नाल्को इज पार्ट ऑफ इट, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एनबीसीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड विच इज एनएलसीआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। रिमेंबर स्टील जो बनाता है अपने यहाँ पे तो वो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दीज 14 will form the navratnas. All right, moving on, IT industry. Okay, now we are out of that section, so we go on to the IT industry. अब IT industry में हमको पता है राइट क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं या फिर उससे रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर वाला, मतलब सर्विसेज जो होती है वो ऑफर करते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन जीडीपी, हमारा बहुत पैसा वहां से आता है। अभी भी अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का ये देखेंगे ना, लाइक इफ यू रीड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यू नोटिस कि सर्विसेज सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। like as long as this sector performs well, the GDP is stabilized, GDP stabilize होता है, agriculture ऊपर नीचे हो जाता है, manufacturing industries में problems हो जाती है because it depends upon the demand, raw material कितना मिल रहा है, supply की कितनी जरूरत है। अभी जब गाड़ियां नहीं चल रही थी during the lockdown, the car manufacturing business was like it had simply stopped right for a while, so clearly manufacturing sector इतना काम नहीं कर रहा था and steel industry भी थोड़ा सा slow down में था। So but us time pe bhi services sector was booming. Okay, like even then if there was one industry which was you know which had a stable performance, it was the services sector. Okay, now moving on, IT jo hota hai that has emerged as one of the largest contributors. Okay, within services also you are looking at IT. Okay, that has emerged as one of the largest contributors. United States अकेला हमसे 2/3 exports लेता है हमारी तरफ से। Okay, which is also one real reason why United States happens to be one of the largest trading partners. Okay, क्योंकि हम उनको बहुत export करते हैं IT services. Okay, major IT centers in India are Bangalore, Silicon Valley, then Pune, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Kolkata and Delhi, Noida. Okay, ये famous है आजकल। Like add one Gurgaon to it also. Gurugram को add कर दीजिए उसमें, वहाँ पे भी it seems IT centers होते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे आते हैं। ओके, कॉटन इंडस्ट्री,
हमारा फर्स्ट इंडस्ट्री जो इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, it was this industry. The very first textile mill जो हमने establish किया था in 1854, that was the in Mumbai, that was by C.N. Dewar, and उन्होंने first textile mill establish किया था यहाँ पे. Okay, तो this is still India's second largest. कॉटन जो होता है ना, उसमें इंडिया अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है. ओके, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर यूएसए. ओके, नाउ लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हम कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र से शुरू करते हैं. ओके, कॉटन टेक्सटाइल मीन्स महाराष्ट्र. कॉटन गुजरात प्रोड्यूस कर ले, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल जो है वो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो मुंबई, सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, अकोला, नागपुर, जळगाव, सांगली, मिरज, कल्याण एंड ठाणे. ओके, सो दिस इज वेयर बेसिकली हमारा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है. गुजरात में इट्स अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, कलोल, काडी, खंबट, केलोद, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा. Okay, Tamil Nadu is interesting because it used to have the maximum number of cotton mills in the country, okay, at one point of time. Centers around Chennai, Guntur, Perambur, Salem, Tirunelveli, and Tuticorin. Okay, Uttar Pradesh mein it is around. Uttar Pradesh ka cotton textile industry is huge, very huge, absolutely huge. Okay, so Kanpur, Agra, Aligarh, Bareilly, Etawah, लखनऊ, मिर्जापुर, मोदीनगर, मोदीपुरम, मुरादाबाद, सहारनपुर एंड वाराणसी. ओके, वेस्ट बंगाल का भी कॉटन इंडस्ट्री ह्यूज है बिकॉज कोलकाता, हावड़ा, हुबली, मुर्शिदाबाद, पानीहर, सो इट इज ऑल सिचुएटेड अराउंड दीज प्लेसेस. एंड पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कॉटन इंडिया में नहीं चल, लाइक वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री. आधा टाइम तो लाइक, एंड हमारा पॉपुलेशन लाइक स्पेशली ट्रॉपिक्स के नीचे वाला जो पार्ट है, लाइक दिस ये पेनिनसुलर रीजन जो है इंडिया का, यहाँ पे तो आप डेफिनेटली कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं, वेदर इट्स समर, वेदर इट्स विंटर, बिकॉज विंटर्स हार्श नहीं होते. विंटर्स हार्श ऊपर वाले रीजन में होते हैं, नॉर्दर्न रीजन में विंटर्स हार्श होते हैं. ओके, लेकिन नीचे वाले जो सदर्न पेनिनसुला है इंडिया का, वहाँ पे विंटर्स हार्श नहीं होते, लाइक समटाइम्स माइल्ड विंटर्स होते हैं, वेरी इक्वेबल क्लाइमेट, सो यू डोंट इवन फील दैट, whereas summers can be really hot. So obviously cotton textiles is going to be a huge thing in India. Okay, बहुत ज़्यादा पहनते हैं हम लोग cotton. So you have to understand why cotton industry is so important. Jute industry. Let's go on to jute and silk industry. Okay, jute industry. India is the largest producer of raw jute and jute goods, and it stands at second place as an exporter after Bangladesh. Okay, Bangladesh सबसे ज़्यादा jute export करता है, लेकिन हम produce सबसे ज़्यादा करते हैं. Okay, the first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at Rishra. Okay, so first cotton mill 1854 में set up किया था. jute mill हमने वही कोलकाता में 1855 रिश्रा के पास सेटअप किया था. ओके, अभी ये वाला चीज आपको हमेशा पूछते हैं कि पार्टीशन के बाद ना जितना भी जूट ग्रोइंग एरिया था वो पाकिस्तान के पास चला गया, बांग्लादेश में, जिसको हम अभी बांग्लादेश बोलते हैं, पहले हम जिसको ईस्ट पाकिस्तान बुलाया करते थे, तो वहां पे चला गया. एंड जितने भी मिल्स थे वो अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी मिल्स थे, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में रह गए. दोनों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि नाउ ईस्ट पाकिस्तान हैड टू go ahead and set up a proper industry, a proper like mills erect करने पड़े उनको, और हमको यहाँ पे actually like जूट कहाँ से लाएंगे ना, so like सिर्फ mills है, जूट तो लाना पड़ेगा. So we had to work out how to do that. Okay, so anyways most of the jute mills are along the Hooghly river. Have I ever told you, मैं हमेशा बताती हूँ, ये suppose this is the Hooghly river, right? तो ये इंडस्ट्री का जो बाजू में है ना, पूरे रिवर के साइड्स में ना, you will see it's all industrial, सारा इंडस्ट्रियल रीजन है, हर तरह का इंडस्ट्री मिल जाता है आपको. दिस इज द हुगली बेल्ट, दिस इज द प्रॉपर हुगली बेल्ट. ऐसे खतरनाक इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं, एंड यू नेम द काइंड ऑफ इंडस्ट्री एंड यू विल फाइंड इट ओवर. ओके, तो आपको जूट मिल्स भी यही हुगली रिवर के अलावा मिल जाते हैं. सो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो है वेस्ट बंगाल में, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दैट इज द रीजन दैट यू प्रोड्यूस जूट, राइट. आपको फ्लैट लैंड्स चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, अच्छा खासा हीट भी चाहिए, and you know the rains should be like you can't have, you know, it can't, अच्छा like it should be distributed, वो rains भी properly distributed होनी चाहिए. Okay, so it accounts for almost 85%. So West Bengal is the place for you. Accounts for almost 85% of the total jute production. Mostly Kolkata के around होता है. Also Howrah, Titagarh, Jagaddal and Bajbaj. Okay. Andhra Pradesh में it happens around Eluru, Guntur, Ongole, Visakhapatnam. Bihar is another famous place for jute. Darbhanga, Gaya, Samastipur, Katihar, and Uttar Pradesh में Kanpur के around. Okay. Kanpur is a huge center when it comes to textiles.
कानपुर कपड़े के लिए मतलब कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट इंडस्ट्री सबके लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, वुलन इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है कानपुर. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी डू. सिल्क इंडस्ट्री को कंसिडर करते हैं. ओके, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क. नो गेसेस फॉर हु विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. चाइना ऑब्वियसली. ओके, इंडिया इज अकेला ऐसा कंट्री है जो चारों वैरायटीज प्रोड्यूस करता है नेचुरल सिल्क के. ओके, मलबरी, टसर, ओक टसर, एरी एंड मुगा. ओके, तो ऐसे 4 वैरायटीज होते हैं, मलबरी, टसर, एरी, मुगा. एंड इंडिया चारों वैरायटीज प्रोड्यूस करता है. ओके, नाउ इंडिया में ना 97% ऑफ द रॉ मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन 5 इंडियन स्टेट्स. ओके, जितना भी रादर हम मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसमें 97% ऑफ दैट सिल्क कम्स फ्रॉम द 5 स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर. ओके, this is the region where majority of your silk comes from. Okay, now याद कर लीजिएगा. मम्मी का wardrobe देख लीजिएगा कभी, या फिर like any females in your family, go ahead and check that wardrobe. You'll be able to identify most of these sarees over there. Okay, Karnataka का Mysore silk is famous. Tumkur, Dodbalapur, Bangalore, Belgaum, Gokak, Mandya, Kolar. Okay, भाई वो आपका कोलार गोल्ड फील्ड्स वाला कोलार, सेम प्लेस, वहां पे सिल्क भी मिलता है. दैट इज ऑल्सो अ फेमस प्लेस फॉर सिल्क. ओके, तमिलनाडु में धर्मापुरम, these are proper sarees people, Kanchipuram, Dharmapuram sarees, these are famous sarees. So Salem, Coimbatore, Tirunelveli, Kanchipuram. Okay, Andhra Pradesh mein once again you come to Chittor, Karimnagar, Warangal, Mehboob Nagar, Kurnool, Ongole, Adilabad, Dharmavaram, Hindupur and Pochampalli. Okay, Pochampalli yaad hai? Do you remember Pochampalli? This is Vinoba Bhave. भूदान मूवमेंट यहाँ से शुरू किया था. यार रिलेट करना सीख लीजिएगा पीपल. बिहार इज भागलपुर एंड कटिहार. भागलपुर सिल्क इज, ये मेरा फेवरेट सिल्क है, सो आई रिमेम्बर वेयर भागलपुर सिल्क इज फ्रॉम. ओके, वेस्ट बंगाल इज मुर्शिदाबाद, मालदा, बंकुरा. ओके, सो मुर्शिदाबाद का सिल्क भी बहुत फेमस है. असम में सुअलकुची. यार दीज आर फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको सिल्क मिलता है. ओके, दीज आर प्लेसेस व्हिच आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क या सिल्क साड़ीज, उसके लिए फेमस होता है वो. सो दैट इज देयर. Okay, anyways, moving on, wool industry. Okay, wool, now we finished with 2 types of like हमने cotton, jute and silk देख लिया. Now we move on to wool industry. Okay, India में sorry, 1 minute. Okay, India is the 7th largest producer of wool. Okay, India ना wool को India like clearly हमारा शेयर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन we have a like we are a huge country, right? तो clearly wool का wool produce करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले ना हमने लाल इमली नाम का एक जगह था. it's a building है, like एक जगह है कानपुर में, तो उसको लाल इमली कहते थे. एंड उस बिल्डिंग में हमने वो वुलन इंडस्ट्री शुरू किया था. ओके, मोस्टली हमारा जो अभी वो बंद हो गया है, क्लियरली दैट प्लेस है शट डाउन. It shut down like 1 or 2 years ago. ये बहुत ज्यादा साल भी नहीं हो गए, लेकिन लाल इमली was shut down. Okay, wool industry जो है that is concentrated in Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Jammu and Kashmir. Okay, look at where your this comes from. Rajasthan जो है that accounts for the largest wool production in the country. Okay, so this fact throws you off, right? You don't expect the desert to produce the largest amount of wool. Makes sense why it produces the largest amount of wool, because sheep जो होते हैं उनको ड्राई इसकी like ड्राई इसमें वो बेहतर wool produce करेंगे एटमॉस्फेयर में, rather than a humid atmosphere. Okay, humid climate से better dry climates में ज्यादा better wool production होता है. Okay, Punjab, it accounts for about 40% of the wool production units. Okay, Amritsar, Dhariwal, Kharar, Ludhiana, famous. Haryana में बहादुरगढ़, फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, famous places. Okay, in Rajasthan it is Alwar, Bikaner, Bhilwara, Jaipur, Jodhpur. Srinagar in Jammu and Kashmir. उत्तर प्रदेश में वापस कानपुर, आगरा, मिर्जापुर, वाराणसी. गुजरात में अहमदाबाद, कालोल, वडोदरा, जामनगर. And then Bangalore, Kolkata, Kulu, Salem, Chennai. These are other famous centers for wool production. Okay, ठीक है, woolen fabrics के लिए. All right, ठीक है. Sugar industry. Now moving on to the sugar industry, and then उसके बाद हम regions करेंगे, and that will finish this off. Okay, हमारा ये वाला chapter भी हो जाएगा. Tomorrow I begin with trade and communications people. मैं पोर्ट्स वोट्स कराऊंगी, सो प्लीज उसके बाद आके मुझे मत बोलना कि यार पोर्ट्स मिस हो गए थे या व्हाटएवर. लाइक यू नो व्हाट आई एम डूइंग.
So, or then you can simply find this lecture online and then that should solve the issue. Anyways, coming on to sugar, going on to sugar industry. Here we are. Sorry, क्या बोल रहे हैं आप? Yes, ma'am. Okay, thanks, Utkarsh. Here we are. Sugar industry. India is the largest sugar producer, followed by Brazil. Sugar industry हमारे यहाँ पे second largest agro industry है, especially after cotton textile. Okay. Now sugar raw material जो होता है used in this industry bulky होता है, उसका sucrose content reduce होता है the moment you harvest sugar. That is why sugar cane growing areas के पास ही आपका usually sugar industry situated होता है. Okay, the sugar industry is very close to the sugarcane growing regions. All right. Major centers कहाँ होंगे? उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन एंड गोरखपुर. ओके, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, सांगली, नंदुरबार, बीड, अहमदनगर एंड बारामती. ओके, कर्नाटका में मांड्या, कोन्नूर, हुसूर, कोप्पा, डंडेली. तमिलनाडु में विल्लुपुरम, सालेम, तिरुनेलवेली, पेरम्बलूर. ओके, सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू विल यूजुअली फाइंड द शुगर इंडस्ट्री लोकेटेड. ओके, यार उत्तर प्रदेश को एंड महाराष्ट्र को याद रखिएगा, दैट शुड बी मोर देन इनफ, लाइक क्योंकि क्लियरली वो सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करते हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द इंडस्ट्रियल रीजंस. यार पीपल, देयर आर 6 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हम स्टडी करेंगे. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुणे मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन एंड द कोलकाता हुगली रीजन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पुणे मुंबई स्पॉट कर सकते हैं, यू कैन स्पॉट द पुणे मुंबई रीजन ओवर हियर. ओके, वो फेमस है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन. शुरुआत इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारी कंट्री में यहाँ से हुई बिकॉज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. ओके, व्हाट वर्क्स इन फेवर ऑफ दिस इंडस्ट्री? द क्लाइमेट, क्लियरली कोस्टल क्लाइमेट, इक्वेबल क्लाइमेट, द प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल यस. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल लेबर, या दोनों चीजें यहाँ पे एडवांटेज में. एंड बिकॉज ये प्लेस पहले डेवलप हो गई, सो देन ऑब्वियसली बाकी के प्लेस लाइक यू नो मोर एंड मोर वो इकोनॉमी ऑफ स्केल, उस हिसाब से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर आके बसने लगे. ओके, सो मुंबई एंड पुणे इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, IT, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, मेटलर्जिकल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, लाइक clearly a very wide variety of industries. Okay, बहुत बड़ी इंडस्ट्री मिलती है. कोलकाता हुगली रीजन. Now this is this part. Okay, now your ये वाला रीजन दिख रहा है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, कोलकाता हुगली रीजन, ये अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर. ओके, इसके फायदे क्या है इस रीजन के? इट हैज द प्रॉक्सिमिटी टू एग्रो एंड मिनरल रॉ मटेरियल, है ना, क्योंकि वो झारखंड वगैरह, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा सारे रीजन्स करीब है, तो इट बहुत क्लियरली सारा. एंड वेस्ट बंगाल खुद एग्रो मटेरियल के लिए बहुत फेमस है. सो एग्रो मिनरल रॉ मटेरियल यहाँ से मिलता है. पोर्ट है इसके बाजू में कोलकाता का. चीप लेबर है बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है आजू बाजू के रीजन में. अबंडेंस ऑफ वाटर है. यार ये हुगली वाला रिवर, हुगली रिवर अवेलेबल है, दामोदर है, दामोदर का ट्रिब्यूटरी बाराखर है. सो दिस रीजन हैज अबंडेंस ऑफ वाटर सप्लाई. ओके, सो यहाँ पे पानी की कमी नहीं है. Kolkata is also one of the most important cities. Bansberia, Jagaddal, Titagarh, Rishra, Agarpara, Howrah, Bajbaj, Birlapur. These are famous places, okay, are in and around that place. Now, यहाँ पर jute, silk, cotton textile, pharmaceuticals, transport, chemicals, automobiles, iron and steel, and locomotives का industry. Okay, famous industry. Moving on. Ahmedabad. Okay, let's go to Ahmedabad Vadodara region. This is the part. Okay, ये वाला part नजर आ रहा है आपको? Can you make out this part? That's the Ahmedabad Vadodara region. Okay, let's go spot it. Ahmedabad Vadodara region India का third largest industrial region है. Clearly growing at a very fast pace. Okay, why? What works in favor of this region? Cotton मिलता है, right? Petroleum industry है, electric power from thermal and nuclear hydro power stations. Port है, सूरत वगैरह वो सारे ports है. Labor has, and labor भी clearly available होता है. इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है. लेट मी जस्ट टेल यू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन एवरीवेयर एल्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लेबर. ओके, हिमालयन रीजन्स को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, लेकिन हर जगह पे आपको काफी पॉपुलेशन मिलेगा, लेबर विल बी इजीली अवेलेबल. ओके, सेंटर्स कौन से लिखे? सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, अंकलेश्वर, जामनगर, काडोल, भरूच एंड भावनगर. And what sort of industries are involved over here? Cotton textile, definitely. Gujarat बहुत ज्यादा cotton produce करता है, just like Maharashtra. Petrochemicals, वो है ना, वो जामनगर वाला refinery इतना बड़ा, वो petrochemical industry नहीं है तो फिर क्या है? Automobiles, woolen textiles, diamond cutting. Surat is so famous as a diamond cutting center, right? Diamond industry के लिए कितना famous है वो? Agro based industries available है. Okay,
Moving on, go to the Madurai, Coimbatore, Bangalore region. Okay, अभी Madurai, Coimbatore, Bangalore region की तरफ जाते हैं. Let's spot that region. This दिख रहा है आपको नीचे की तरफ यहाँ पे साउथ में. Sorry, that's the Madurai, Coimbatore, Bangalore region. Okay. Now ये region जो है that includes the regions from Tamil Nadu, Karnataka. All right. अभी यहाँ पर famously मुझे बताइए what works climate? Clearly climate works. Labor, power, proximity to seaports, ये इसके natural advantages है. Bangalore, Chennai सबसे important regions. What sort of industries work over here? Cotton and silk textile, leather, oil, coffee, chemicals, cement, sugar, IT industry, IT, electronics, automobiles, iron and steel. ये सारे industries काम करते हैं. जितने भी बड़े ब्रांड्स दिखते हैं आपको वो सब सारे बड़े वाले ब्रांड्स इस रीजन से आते हैं. हैल, HMT, VISL, TCS, Infosys, ये सारे मेजर ब्रांड्स इस रीजन से. ओके, मूविंग ऑन, गो टू द छोटा नागपुर पार्ट. ओके, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन जो है उसको देख लीजिएगा. वो दिस स्ट्रेचेस ओवर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न बिहार, ईस्टर्न वेस्ट बंगाल वगैरह, ये वाले रीजन से स्प्रेड आउट है. ओके, दिस इज द होल पार्ट ऑफ इट. सो अब ये वाला पार्ट है ना, इसको प्लीज याद रखिए कौन सा शहर किस तरफ रहता है. ओके, सो यू विल नोटिस देयर आर प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल व्हिच फॉल विद इन दिस रीजन. ओके, सो सारे वेस्ट बंगाल के प्लेसेस डू नॉट गो अहेड एंड फॉल इन द कोलकाता हुगली रीजन. सम प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल फॉल इन छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन आल्सो. ओके, बिकॉज ये वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, सदर्न बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, ये बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है. ओके, रूर ऑफ इंडिया कहते हैं इसको. आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बहुत फेमस है यहाँ पे. एंड मेन सेंटर्स आर आसनसोल, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, कुल्टी, जमशेदपुर, रूरकेला. ओके, सारे फेमस प्लेसेस. एंड they also have fertilizer, cement, locomotive and glass industry. Okay, so iron and steel and aluminum industries are flag bearer industries of छोटा नागपुर region. And then उनके पास और भी बड़े सारे industries है जिसके लिए आपको similar raw material लगता है. Okay, now last region being Delhi, Agra, Delhi, Kalka, Saharanpur region. Okay, let's see. ये सबसे लेटेस्ट रीजन है. दिस केम आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड एवरीथिंग. मोस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रो बेस्ड मटेरियल्स. ओके, ये गंगा वैली के पास वाला रीजन है. तो दिस यहाँ पर एग्रो बेस्ड मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो उन्होंने उसी को डेवलप किया. उसका खासियत क्या है? व्हाट आर द यूनिक एडवांटेजेस ऑफ दिस रीजन? प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स. यू आर बैंग इन द मिडल ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया, सो क्लियरली मार्केट हैज टू बी योर यूएस. ओके, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे उसके एडवांटेजेस है. ओके, नाउ यहाँ पे कौन से इंडस्ट्रीज मिलते हैं? टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो बेस्ड, शुगर, पेपर, टूरिज्म, ये सारे इंडस्ट्रीज है यहाँ पे. ओके, सेंटर्स कौन से हैं? आगरा, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मथुरा, मेरठ, मोदीनगर, नोएडा, पानीपत एंड सहारनपुर. ओके, सो दीज आर द फेमस प्लेसेस फ्रॉम दिस प्लेस. पीपल लिसन नाउ. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डोंट फील सडनली वेरी इंटिमिडेटेड बाय सो मेनी नेम्स एंड सो मेनी सिटीज एंड सो मेनी थिंग्स टू रिमेंबर. The logic is very simple. Try to remember the 6 major regions. कौन सी जगह पे पड़ता है. Like आपको maximum ये पूछा जाएगा कि यार वो where do you find दुर्गापुर? दुर्गापुर clearly बंगाल में lie करता है. लेकिन अगर आपको पूछा जाए दुर्गापुर कौन से इंडस्ट्रियल रीजन में लाई करता है, तो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है. Yeah, this is not Kolkata या हुगली. This lies closer to this part. तो clearly वो वहाँ पे lie करेगा. Okay, तो just remember मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, but like it's up to you. And try to remember name of the city and the industry that it is famous for. Okay, because most questions are posed in that fashion. चलेगा? Okay. एंड आपको यूजुअली ना मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको 2 पता होंगे. समटाइम्स यू कैन वर्क आउट द एंटायर आंसर बेस्ड ऑन 1 or 2 cities that you have knowledge of. Okay, so check, don't give up on it just because आपको लगता है यार मुझे सारी cities नहीं पता. Sometimes you can work out an answer. Okay, now हम क्या कर रहे थे यार? मैं आपको एक लास्ट PIL बताने वाली थी. Right, that was what I wanted. We were going to discuss PIL with you. हमारा judicature पूरा हो गया था, and I just wanted to discuss PIL with you because that's important. Okay, long ago ना PIL का मतलब होता है public interest litigation. Okay, now PIL
मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। उसका मतलब ऐसा होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, मतलब जनहितार्थ कहते हैं ना, लाइक फॉर द जनरल वेलबींग ऑफ द होल पीपल, ऑफ ऑल द पीपल इन द नेशन। तो उनके जनरल इंटरेस्ट में या फिर एक क्लास या कम्युनिटी के इंटरेस्ट में अगर कोई या अगर किसी एक सर्टेन टाइप के पीपल का लीगल राइट्स या लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रहे होंगे, तो फिर एक लीगल एक्शन इनिशिएट की जाती है, सो दैट दैट पर्टिकुलर लॉ कैन बी इन प्लेस। ओके, तो दिस इज व्हाट इट मींस। उसको कहते हैं पीआईएल। ओके, आपने पीआईएल सबसे कॉमन इसमें कहाँ देखा होगा? एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए, राइट? like if somebody somebody goes ahead and says कि यार ये पानी खराब आ रहा है, सो इसके लिए पीआईएल करवा दो, कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको साफ पानी प्रोवाइड करें। या फिर ये कैसे लाइक द काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग इन प्लेसेस, ऐसे हिल्स पे या फॉरेस्ट रीजन्स में बहुत इजीली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सो फिर उसको रुकवा दो। सो दिस इज फॉर द, ये कोई एक इंसान का ग्रीवेंस नहीं है जिसके लिए कोर्ट लड़ रहा है या कोर्ट में लड़ा जा रहा है। सो क्लियरली इट मैटर्स टू अ होल लॉट ऑफ पीपल। ओके, लाइक इस तरह के इश्यूज बहुत लोगों के लिए मैटर करते हैं। तो ऐसा वाला एक्शन, जब लीगल एक्शन कोर्ट में फाइल किया जाता है, तो देन दैट इज कॉल्ड एज अ पीआई। ओके, नाउ इसके पायनियर्स जो थे, दैट वाज जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पी एन भगवती। ओके, ये दोनों फेमस पायनियर्स थे ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआई। ओके, पीआई में, पीआई does not have to be, PIL could be filed by any member of the public, okay, who has sufficient interest. They can approach the court for enforcing the rights of other peoples and the redressal of a common grievance. Okay, so say for example, मैं यहाँ पुणे में रहती हूँ, लेकिन एंड ऐसे सपोज मैं शिवाजी नगर रीजन में नहीं रहती। ओके, लेकिन इफ आई फाइंड कि यार वो शिवाजी नगर रीजन में ना बड़े सारे, या पर्वती लेट्स कंसिडर पर्वती रीजन इन इंडिया, इन पुणे। ओके, तो वहां पे से बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ से, even though I live in the airport region, airport area में रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं वहां पे जाके बता सकती हूँ कि वो, even though I don't live over there, वो पर्वती के ट्रीज नहीं काटने चाहिए। ओके, 1 second, sorry. Sorry. Okay, I thought I was going to sneeze. It seems I'm not being able to sneeze. Okay. So if I have that sort of a grievance कि यार पर्वती के trees नहीं काटने चाहिए, then this becomes that thing. Okay. So इस तरह का, तो I can, even though I am not directly affected by it, लेकिन मेरा sufficient interest हो सकता है कि यार पुणे is losing its oxygen, so पर्वती के trees ना काटो। Okay. So this, अगर मैं सबके rights enforce करे जा रही हूँ and it's a common grievance कि यार the whole city is losing oxygen because पर्वती के trees कट रहे हैं, so then this can be a matter of PIL. Okay, ये PIL करके फाइल कर सकती हूँ मैं, not on behalf of everyone else. Okay, now purposes of PIL क्या होते हैं? Vindication of the rule of law, of course, because you're looking for the rule of law, and you are facilitating effective just access to justice to the socially and economically weaker sections of the society, and उनके fundamental rights का understanding है आप। Okay, clearly it is my fundamental right to have oxygen, so उसके लिए मैं फाइल कर ही सकती हूँ एक PIL by saying कि यार trees ना काटो, इतने unreasonably arbitrarily पेड़ों को मत काटो। Okay, this is something that you want to say. So this obviously is available to you. Supreme Court. So any member of the society can, of course, file the PIL. Okay. Now Supreme Court जो होता है, it has the right to decide whether or not to entertain the PIL and may throw out such petition for being frivolous. Okay. So कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि ये जो PIL फाइल किया था वो कितना सही है या गलत है, सही करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। And कभी कभी the Supreme Court can throw out the PIL and then fine you for it. ऐसा भी कर सकते हैं वो. There has been a case when the Supreme Court has done that. However illogical it might be to the petitioner or to the Supreme Court has the right to do that. Okay, and citizens can file a public case by filing a petition under Article 32 in the Supreme Court, under Article 26 in the High Court, या फिर under Section 133 of the Criminal Procedure Court in a Magistrates Court. Okay, तो छोटे वाले कोर्ट में, मतलब लोअर कोर्ट में या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पे PIL फाइल करने का हक है। ओके, वन ऑफ द लैंडमार्क PIL केसेस इन इंडिया इज विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान। फेमस केस है अपने यहाँ पे, which sought to protect against sexual harassment in the workplace. Okay,
there was a very famous case. Vishakha is not the name of a person. Vishakha is the name of an organization which was of many others. It is Vishakha and many others, the state of Rajasthan. So that is how it goes. Lekin Vishakha happened to be the first, plaintiffs ki jagah par Vishakha first tha. So clearly, the case came to be known as Vishakha v state of Rajasthan. Okay, fine. Good. All right. Moving on to the next section. Abhi na humko polity mein, like we are done with this part. So now the only thing that is remaining is the federal structure. Let's look at the federal structure. Okay, India का federal system देख लेते हैं. आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा. इसके ऊपर questions based होते हैं. So let's do that and we'll be done in a while. एक मिनट. Okay, ठीक है. Federal structure देख लेते हैं. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर. ओके, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर. तो हम ये क्लियरली हम जुडिशियल पावर का डिवीजन नहीं किया है हमने. ओके, इसीलिए तो जुडिकेचर को सेपरेटली स्टडी किया था हमने. नाउ लेट्स लुक एट द फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम जो होता है अपना, दैट डिस्क्राइब्स द डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नॉट डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस. ओके, वो होता है. लेकिन हमने फेडरलिज्म को अपना बेसिक स्ट्रक्चर माना है. फेडरल system is considered as the basic structure of the government. That is what it is meant to be. Ki basically, there will be a proper distribution of legislative and executive power between the union government and the state governments. Okay, ये हमने अच्छे से, like सारा power union government में concentrated नहीं है. That it is not our central nervous system or anything. Okay, clearly this is like ये सब कुछ हमने ठीक से कर लिया है. Division of power, distribution of power, not division, distribution of power. Okay, let's see now. Union is composed of 28 states and 8 union territories. ये आपको याद रखिएगा प्लीज कि 28 states से हमारे 8 union territories है. Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli are one nowadays. Okay, federal system जो है, it manifests itself in this manner. कैसे नजर आता है आपको कि हम फेडरल सिस्टम, like we apply the principles of federalism to a polity? How do we know that? So it is because we have a legislative list. हमारे पास 3 legislative lists है 7 schedule में. We have the system of local governments. There's a finance commission. नीति आयोग बिठा के रखा है, इसमें क्लियरली हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं. There's the interstate trade and commerce. National Development Council है. There's a National Integration Council, interstate councils available, zonal councils, river board, water disputes tribunal. So all these things are available, which clearly make us understand कि your federal system is and all India services. All India services is another good way of looking at how the federal system in India works. Okay, तो इन सबके साथ that every single one of these concepts is proof enough कि इंडिया में फेडरल सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं within our polity. Okay, ठीक है. Let's look at the legislative list. Let's look at this part. Okay, legislative list का मतलब क्या होता है? हमारे पास ना एक 7 शेड्यूल है. हमारी कंट्री ने क्लियरली जब बोला था कि यार फेडरल लिस्ट होंगे, I mean फेडरलिज्म होगा इंडिया में, एंड वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, तो हमने डिसाइड किया ओके ठीक है, गवर्नमेंट, both the union government and the state government have their own executive power and their own legislative power. Okay, तो एक 3 लिस्ट मिलते हैं आपको इन द 7 शेड्यूल. तो उसका एक लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट. ओके, तो वो जो यूनियन लिस्ट है, इट विल कंटेन ऑल दो सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है. ओके, तो उसमें कुछ 100 आइटम्स है, एंड दो सब्जेक्ट्स इंक्लूड डिफेंस, ऑब्वियसली, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस, सिटीजनशिप, करेंसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस. ओके, तो ऐसे बड़े बड़े वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो क्लियरली पूरे नेशन के लिए मैटर करते हैं, तो वो सब कुछ क्लियरली यूनियन लेजिस्लेचर की लिस्ट में है. तो इन सारी चीजों पे जब भी कोई लॉ बनाना है, कोई लेजिस्लेशन बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है. ओके, कूल. देन देयर इज द स्टेट लिस्ट. ओके, अब ये स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें वो वाले सब्जेक्ट्स मेंशन किए होते हैं जिसके लिए सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकते हैं. ओके, तो दे कंटेन सम 61 आइटम्स एंड दोज आर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, रिमेंबर दिस, पुलिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फिशरीज, ये सब कुछ क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आता है. ओके, तो हर किसी का अपना अपना ये है, व्हाट डू यू से, लाइक एवरीवन हैज देयर ओन थिंग कि कौन
स्टेट लिस्ट में आई टेल यू हाउ दिस वर्क्स। स्टेट लिस्ट में जब आप कोई सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ओके, या फिर लोकल गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्रीज, फिशरीज, ऐसे वाले सब्जेक्ट्स जब आप कंसिडर करते हो ना, तो एवरी सिंगल स्टेट कैन मेक डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू इट। तो महाराष्ट्र स्टेट के लॉज अलग हो सकते हैं, तमिलनाडु के अलग हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल के अलग, यूपी के अलग, है ना। तो क्लियरली ऐसे वाले सब्जेक्ट में, लाइक से आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई लॉज करने हैं तो ये अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लॉज कर सकते हैं, ओके फाइन। एंड देन यू कम अक्रॉस द कंकरेंट लिस्ट, ओके। कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन लेजिस्लेट, ओके, दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर सकते हैं। ऐसे वाले जो होंगे उसको ऐसे वाले सब्जेक्ट्स जो होंगे उसको कहते हैं वो सारे आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट, ओके। सो नाउ इट हैज क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, मैरिज, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, बैंक्रप्सी, these all subjects are included in the concurrent list, okay, ठीक है। सो सेवेंथ शेड्यूल जो है वो ये सारा डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात करता है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो ये जो डिवीजन है दैट इसके दो चीजें समझनी चाहिए आपको, ओके, द टेरिटोरियल एंड द सब्जेक्ट ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट ज्यूरिसडिक्शन क्लियरली देख लिया हमने, दिस इज द सब्जेक्ट ज्यूरिसडिक्शन कि ये यूनियन सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, स्टेट सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। कंकरेंट वाले सब्जेक्ट्स वो होंगे जिसपे यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड जो सब्जेक्ट्स किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, इसके पहले जब हम ये लिख रहे थे तो हमको पता था क्रिप्टो करेंसी करके कुछ होगा नहीं, तो वो दैट विल बिकम अ रेसिडुअरी सब्जेक्ट, ओके। सो ऐसे वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो नए सिरे से, लाइक यू नो, वी आर लुकिंग एट इट इन न्यू वेज, तो ऐसे वाले सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली फॉल अंडर द jurisdiction of the union, okay, तो यूनियन बनाएगा उसके ऊपर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। नाउ टेरिटोरियल सब्जेक्ट ज्यूरिसडिक्शन देख लिया हमने, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब से फॉर लाइक कितने एरिया पर चलेगा, ये कितने एरिया में ये लेजिस्लेशन वैलिड है, ओके। तो स्टेट लिस्ट जो बनाती है, जैसे हमने एग्रीकल्चर डिस्कस किया, तो महाराष्ट्र के लॉ सिर्फ महाराष्ट्र में वैलिड है, तमिलनाडु के एग्रीकल्चरल लॉ सिर्फ तमिलनाडु में वैलिड है, ओके। लेकिन यूनियन जब सिटीजनशिप पे लॉ बनाता है या फिर करेंसी को लेकर कोई लॉ बनाता है, तो वो पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी पे लागू होते हैं, नॉट जस्ट वन स्टेट और टू स्टेट्स, पूरा का पूरा इंडियन टेरिटरी, ओके। सो दिस इज द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, समझा आपको? सो दिस इज हाउ लेजिस्लेटिव लिस्ट वर्क। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ यू नो ऑफ एग्जिबिटिंग कि इंडिया में फेडरलिज्म कितना अच्छे से वर्क करता है। लाइक वी डू हैव फेडरलिज्म इन इंडिया and it's a part of a basic structure, उसको hurt नहीं कर सकते, you can't do anything to hurt that, okay, fine. Give me a minute, let's just drink water. Okay, let's look at legislative powers का distribution कैसे होता है, okay. हमने रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स देख लिए थे, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि उसके ऊपर फिर यूनियन का ये चलेगा, मतलब जोर चलेगा, ओके। नाउ अगर ऐसा हो सकता है कि वो तीनों लिस्ट में कोई ओवरलैपिंग हो जाए, कुछ लॉ है उसके कुछ क्लॉजेस दूसरे वाले सब्जेक्ट से भी होते हैं, तो वंस अगेन यूनियन लेजिस्लेचर हैज द प्रीडोमिनेंस, ओके। यूनियन लेजिस्लेचर, यार हम मानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स पे पूरी तरह से स्टेट का जोर चलता है, लेकिन जहां पर कहीं थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाए ना बिटवीन द थ्री लिस्ट, तो यूनियन हैज द प्रीडोमिनेंस, ओके। कंकरेंट स्फीयर में भी, से सपोज कंकरेंट स्फीयर की बात चल रही है, ओके, we have a law related to trade unions, ऐसा मान के चलते हैं, ओके। ट्रेड यूनियंस या फॉरेस्ट को लेकर गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया एंड यूनियन गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया एंड से किसी स्टेट ने भी लॉ बना दिया, यूपी के स्टेट ने कोई लॉ बनाया, ओके, एंड यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, तो पता चला कि वो दोनों लॉज थोड़े से डिफरेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ विल हैव प्रेसिडेंस ओवर द स्टेट गवर्नमेंट लॉ, ओके। यूपी ने जो लॉ बनाया है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो हर तरफ माना जाएगा, ओके। सो दैट्स द थिंग अबाउट स्फीयर में भी जब रिपग्नेंसी होता है तो उसके बारे में बात करते हैं, ओके। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन, दिस इज इंटरेस्टिंग कि यूनियन के लेजिस्लेटिव, अब ये हम लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस करें ना, कौन किस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन बना सकता है।
लॉज बना सकता है। तो कभी कभी लेजिस्लेटिव पावर्स जो होते हैं यूनियन के वो एक्सपांड हो जाते हैं। कौन से केस में एक्सपांड होते हैं? इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ओके, अगर नेशनल इंटरेस्ट में होगा तो फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होता है राज्यसभा, वो रेजोल्यूशन पास करता है विद अ स्पेशल मेजोरिटी कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। ओके, तो ऐसा वाला रेजोल्यूशन जब राज्यसभा पास करता है ना, तो दैट ग्रांट्स अ वैलिडिटी ऑफ 1 year to the law. दिस इज अ स्कैरी, I can't say it's a scary thing. Of course, ये बहुत situation, like ये बहुत specific situations को लेकर ध्यान में रखकर बनाया हुआ था ये particular option. लेकिन of course, it would mean कि राज्यसभा क्यों? Why does राज्यसभा have to give out this permission? Because it's the representative of the states, right? States and union territories को represent करता है राज्यसभा। जैसे लोकसभा लोगों को represent करता है, हमको और आपको represent करता है, वैसे राज्यसभा पार्लियामेंट में स्टेट्स को एंड यूनियन टेरिटरीज को represent करता है ना। तो दैट इज वाई राज्यसभा कैन मेक दिस रेजोल्यूशन कि यार पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने दो ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, एंड ये रेजोल्यूशन 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ओके फाइन, मूविंग ऑन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में अपना पूरा गवर्नमेंट एकदम यूनिटरी हो जाता है। ओके, पूरा स्टेट बिकम्स वेरी यूनिटरी। सो उस केस में पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। ओके, ऑफ कोर्स जैसे ही इमरजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, ये लॉज का वैलिडिटी भी उसके 6 महीने के अंदर टर्मिनेट हो जाता है। आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स, तो उसके बाद विद इन 6 months द वैलिडिटी ऑफ द लॉज आल्सो एंड्स। ओके, क्लियरली दैट इज द वर्क। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में यूनिटरी हो जाता है अपना, बहुत ही ज्यादा यूनिटरी हो जाता है गवर्नमेंट। ओके, अगर 2 स्टेट्स अग्री करे, अगर 2 या मोर स्टेट लेजिस्लेचर्स जाकर पार्लियामेंट में रिजॉल्व कर दे कि they can make laws on the subjects in the state list, the parliament shall have power regarding those states only. Okay, see tomorrow if UP, MP and बाजू में क्या है और हरियाणा। Okay, so UP, MP, हरियाणा सबने डिसाइड कर लिया कि जाके स्टेट यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोच करते एंड यूनियन गवर्नमेंट को कहते कि यार आप स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर भी लॉज बना दो हमारे लिए। ओके, तो वो सिर्फ यूपी, एमपी, हरियाणा के लिए ये लॉज बना देंगे। ओके, समझा? सो जो स्टेट्स जाएंगे गवर्नमेंट के पास ये बोलने के लिए कि आप हमारे लिए लॉज बना दो, उन्हीं स्टेट्स के लिए सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, गवर्नमेंट के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास। सो उन्हीं स्टेट्स के लिए सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, बाकी के स्टेट्स को वो अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज दिस वाज बाय अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। वो स्टेट्स ने अग्री किया था विद द पार्लियामेंट कि द पार्लियामेंट विल मेक लॉज फॉर देम। ओके, फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से तो वैसे भी यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगा। ओके, to implement treaties, now this is important, parliament shall have the power to legislate over any subject for the purpose of implementing international treaties, agreements, conventions. Okay, हम जब जाके वो treaty sign करके आते हैं, जैसे साइट्स या फिर क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, ऐसे वाले treaties जब इंडिया जाके साइन करके आता है, तो क्लियरली इंडिया को पूरा हक है। see that talks about forest के बारे में बात करता है। okay, forests is interestingly, suppose कोई international treaty है which talks about forest fisheries. okay, let's say कोई important treaty है which talks about fisheries or agriculture or something like that. okay? तो वो clearly अभी state subject है। alright, तो ideally उसके ऊपर laws बनाने का हक भी state subject मतलब states को हो सकता है because it's a state subject. लेकिन since the government of India went ahead and signed an international treaty, so then now the government can say like this is the law, and even if the subject is within the state list, it will apply to all the states. Okay, समझा? This is how, like clearly international treaties implement करने के लिए parliament को right है to legislate over any subject. Okay, during constitutional emergency in the state, ये तो होता है यार जब state में constitutional, उस particular state में constitutional emergency लगती है, तो parliament takes over the state legislature ना, वो laws भी बनाता है parliament clearly उसके लिए। Okay, ठीक है? Let's go on to the distribution of executive powers. Okay, अभी हमने legislative powers देखी, how legislative powers are distributed. Okay, now executive powers मतलब day to day जो running होता है, how you run the government ना, we are talking of those. Okay, तो executive power of the state is co-extensive with the legislative power. सही है, ये मानते हैं आप कि जो भी अप्लाई करेगा लेजिस्लेटिव पावर के लिए, वही एग्जीक्यूटिव पावर के लिए भी अप्लाई करेगा। ओके, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट का, दैट विल एक्सटेंड ओनली अप टू इट्स ओन टेरिटरी। एग्जीक्यूटिव पावर है जो स्टेट का, दैट विल ओनली एक्सटेंड ओवर सब्जेक्ट्स इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ऑब्वियसली वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं सुनाने जाएगा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। एंड कंकरेंट स्फीयर में
executive power of the state is given precedence over that of the union. Okay, legislation union का important होता है, executive power state का important होता है when it comes to the concurrent sphere. Okay, remember it this way. Actually, once again, ये भी थोड़ा सा high level का है polity आपके लिए, but then just remember, just in case the UPSC decides to ask you weird questions. Okay. Anyways, यूनियन देख लीजिएगा, डायरेक्शंस दे सकता है टू द स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन द फॉलोइंग केसेस. ओके, कि हाउ एग्जीक्यूशन कराना चाहिए डे टू डे गवर्नमेंट का, इसके लिए यूनियन कभी कभी डायरेक्शंस दे सकता है टू द स्टेट. कौन से केसेस में? नॉर्मल टाइम्स में कब दे सकता है? when it is a communication of national or military importance. Okay, obviously protection of railways के लिए, welfare of scheduled tribes के लिए, development of Hindi language के लिए कुछ instructions दे सकता है state government को. Okay, then emergencies में clearly अगर national emergency होगा तो union can control the state legislature without suspending it by giving directions to the state as to the manner in which the executive power is exercised. Okay, see people, the reason why during a national emergency so much importance is given to the union government is because we want to present a united front. Okay, we can't have any kind of quibbles or I say any kind of squabbling over things, internal domestic things. Okay, in that time, so clearly सबसे ज़्यादा power जो होती है वो union government को दी जाती है, so that union government can have absolute control over the situation domestically, so that it can present a united front on the outside internationally. Okay, समझा? So इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है. तो अभी वो स्ट्रांग यूनियन गवर्नमेंट सारी स्टेट्स को बता सकता है कि this is how things are going to be done and these are the directions given to the states and the states need to follow them. Okay, अभी इस केस में स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बोल दिया ना नेशनल इमरजेंसी है तो सुनना पड़ता है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जब होता है अंडर आर्टिकल 356 तो उसमें क्लियरली प्रेसिडेंट्स रूल है. प्रेसिडेंट विल अज्यूम टू हिमसेल्फ एनी और ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट. लेजिस्लेशन तो वैसे भी उसके लिए पार्लियामेंट बनाता है. Okay, and executive powers president assume कर लेते हैं. Okay, so hence it is known as the president's rule. Financial emergency जो होगा अगर कभी इंडिया में डिक्लेयर हो गया तो then this is what we observe. Okay, we say कि we observe canons of financial propriety. मतलब कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पे नहीं करना है इसका डायरेक्शन मिलता है. To reduce the salaries and allowances of officers under the union including judges. Okay, of Supreme Court and High Court. Clearly like normally judges of High Court and Supreme Court के salaries को कभी touch नहीं किया जाता है except in case of financial emergency. Okay, जितने भी मनी बिल्स होते हैं स्टेट के they are reserved for the consideration of the president. Okay, and कुछ duties, some duties may be delegated to the state without its consent. Okay, कभी कभी consent लिए बगैर state का उनको कुछ duties दिए जाते हैं कि see these are the duties you need to perform. All right, so this is also something that is done. Okay, local government. Let's see how local government is an indication of how there's a distribution of powers. ये देखिएगा, जब हम कंसिडर करते हैं कि एक यूनियन है एंड देन दीज आर मल्टीपल स्टेट्स. ओके, तो दिस इज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. ओके, स्टेट 1, स्टेट 2, यूनियन टेरिटरी 1, यूनियन टेरिटरी 2, सो ऑन सो फोर्थ. ओके, सो ये डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, उनके बीच में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है. ओके, वैसे ही अभी कोई इंडिविजुअल स्टेट है. ओके, ये जो या फिर ये वाली स्टेट कंसिडर की जाए. ओके, तो दिस इज द स्टेट. ओके, S3 करके एक स्टेट है, तो उसके बीच में एंड उसका जो भी पंचायत है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर का वो भी सिमिलर होगा टू दैट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द स्टेट. ओके, तो जैसे देयर इज अ पावर डिवीजन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट, वैसे ही देयर इज अ पावर डिवीजन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज, पंचायत गवर्नमेंट और द जो भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी और व्हाटएवर. ओके, तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. अब ये किसने बोला था? आर्टिकल 40 में DPSP में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होना चाहिए फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, गांधीयन प्रिंसिपल. ओके, so we have to follow it. हमने इसको follow किया था and we have recommended, I mean implemented it successfully. We have constituted a 3-tier form of government, local government, जिसमें you have a panchayati raj and rural part में you have the panchayati raj and in the urban section you have the municipalities. Okay, तो municipal corporation, municipality वगैरह जैसे भी आप उसको बुलाना चाहते हो. Now पंचायती राज में क्या होता है? पंचायती राज का ओरिजिन कहाँ से होता है? देयर इज द बलवंत राय कमेटी. इन्होंने रिपोर्ट दिया था इन 1957 कि यार डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करा लो.
ओके, जैसे यूनियन का एंड स्टेट गवर्नमेंट का है रिश्ता पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वैसे स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज का भी रिश्ता होना चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, सो द फर्स्ट पंचायत एवर वाज एस्टैब्लिश्ड एट नागौर इन राजस्थान। ओके, उसको वहां पे एस्टैब्लिश किया था ऑन October 2nd 1959। डेट को नोटिस किया, व्हाई October 2nd 1959? लोकल गवर्नमेंट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल, इसलिए गांधी जी के बर्थडे पे, गांधी जयंती पे हमने इसको शुरू किया था। ओके, इन नागौर राजस्थान। Andhra Pradesh was the next step to adopt this, okay, and thereafter हर एक स्टेट ने like एक के पीछे एक अडॉप्ट करना शुरू कर दिया पंचायती राज को। ओके, नाउ उसके बाद आया एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब हमने इसको, लेकिन वी हैड नॉट इंक्लूडेड दिस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? वी हैड स्टार्टेड इट इन 1959 itself, लेकिन it took us another few years, like what, 32 years to go ahead and have a 32-33 years, okay, to go ahead and have a formal like mention in the constitution. So we have this 73rd Amendment Act. Okay, so 73rd Amendment Act कहता है of 1992 कि पंचायती राज has been accorded a proper constitutional status. Okay, so ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में मेंशन्ड है एंड उससे सारे रिलेटेड चीजें, एंड देन वो 11th शेड्यूल जो है वो भी पंचायती राज से रिलेटेड है। ओके, ओरिजिनल शेड्यूल्स कितने थे हमारे पास? 8। ओके, फिर उसके बाद हमने 9 and 10 ऐड कर दिया, एंड देन दिस इज द 11th शेड्यूल। ओके, जो हमने पंचायती राज से रिलेटेड शेड्यूल था वो ऐड कर दिया। ओके, अब ये जो पार्ट 9 है, दिस विल डील विद द पंचायत एंड कंटेन्स आर्टिकल 243 to 243O, एंड 11th शेड्यूल जो होता है which is Article 243G. It contains 29 subjects. 29 subjects contain करता है, जिसमें पंचायत will have administrative control. Okay, समझा? मतलब जैसे हमारे पास वो legislative list हुआ करते थे in the 7th schedule, वैसे 9th schedule will have the legislative list for a distribution of power or division of power between the state government and the panchayat government. Okay, local government, rural local government के लिए, पंचायती राज के लिए। ओके, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? पंचायत के पावर्स क्या होंगे, रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, एंड पॉवर्टी एलिविएशन, एंड रोड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एटसेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स विच विल बी डिस्कस्ड इन दैट लिस्ट। ओके, तो उसके ऊपर पंचायत राज को फुल फ्रीडम है, जो चाहे करो, जैसा चाहे, मतलब नॉट against the constitutional principles, within principles of the constitution, जैसे भी laws बनाने हैं, जो भी implement करना है, laws बनाने हैं as in policy, mostly it is policy. Okay, तो जो भी उनको decisions लेने हैं वो पंचायती राज ले सकता है, okay, without undue interference from the state government. Alright, अभी पंचायती राज के 3 levels होते हैं, हमने कहा था ना 3-tier system होता है पंचायत का, तो it has three levels. One is the ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होता है, दिस द मंडल परिषद और ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। अब ये कौन से स्टेट में हो इसके हिसाब से इसके अलग अलग नाम रहते हैं। पंचायत समिति इज द मोस्ट फेमस, बट इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ब्लॉक समिति और मंडल परिषद और व्हाटएवर, तो ये ब्लॉक लेवल पे होता है। ओके, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यू हैव द जिला परिषद। ओके, जिला परिषद अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ पंचायती राज के फीचर, like let's look at what are the different features in a पंचायती राज. One is ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होता है? जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स है वहां के, एक्चुअल अगर गांव में सभा बिठाई जाए तो उसमें जितने भी लोग होते हैं ना, that is right, मतलब that is the सभा of the people. So it actually means that ग्राम सभा मतलब within that village जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स है, they are all part of the ग्राम सभा. Okay, तो फिर ये जो भी उनको ड्यूटीज एंड एक्सरसाइजेस बोले हैं करने के लिए, पावर्स एंड फंक्शंस है उसको करता है। ओके, द ग्राम सभा। ओके, इलेक्शंस एंड क्वालिफिकेशंस कैसे होते हैं यार? दीज आर डायरेक्ट इलेक्शंस, ये पॉपुलर इलेक्शंस होते हैं। ओके, चेयरपर्सन जो होता है दैट इज ही और शी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, एंड 21 इयर्स ऑफ एज के होने चाहिए आपको बस ये इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ओके, दैट इज द मिनिमम एज, 21 इयर्स ऑफ एज पे यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। ओके, reservation of seats. Of course, we reserve seats for the scheduled caste and scheduled tribes in proportion to the population, to the total population of the panchayat area. Okay, तो 100 में से अगर 20 people out of 100 people, if there are 20 people who belong to scheduled caste, then scheduled caste को 20% reservation मिल जाएगा in the elected number of people also. Okay, representatives के जितना भी number है उसका उतना इक्वल प्रोपोर्शन में जो उनके पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिए जाएंगे फॉर बोथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. ओके, ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो अ रिजर्वेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन फॉर द SCs and STs. ओके, इन द विलेज पंचायत एंड ऑल. ओके,
कम से कम 1/3 reservation for women ये भी included होता है, including the number of seats reserved for women belonging to the SC and ST, वो उसी में included है, okay? And not less than 1/3 of the total number of offices of chairpersons shall be reserved for women, okay? So 1/3 offices women के लिए भी reserved होते हैं. Now this is how reservation usually works अपने यहाँ पे. Just remember किसके लिए कितना reservation होता है. Women के लिए 1/3 होता है, not less than 1/3. That is the way we define it. And then SC and ST usually it is the proportion in which the population is. Okay. बाकी के terms हम कल discuss करते हैं. Let's discuss the rest of the this tomorrow. Okay. Okay. Thank you, people, and you guys take care and stay safe. Okay. Sorry, आप मुझे oh thank you Jatin for describing what this was. Vishakha case was. Yes. Thank you so much, Naina Kapoor. Absolutely. Anyways, thank you people, and you guys take care and stay safe. Okay, thanks a ton. Bye.